نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. محترم سامعین کرام، آج امت کے اندر جو فرقہ واریت اور قرآن اور سنت سے جو دوری ہو رہی ہے، ہر آدمی، ہر فرقہ، ہر عالم اپنی اپنی طرف لوگوں کو کھینچ رہا ہے. ہر آدمی یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں، اور ہر عام آدمی وہ اس بات کو ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ ہمارا عالم، ہمارا استاد، ہمارا پیر یہ حق پر ہے. پوری امت اس چیز میں لگی ہوئی ہے. حق کیا ہے، سچ کیا ہے، اس کا کسی کو علم نہیں. اگر علم ہے تو صرف ان لوگوں کو علم ہے جو اس چیز کو، حق اور باطل جو اس چیز کے اندر ہے، اس چیز کو چھانٹنا اور سمجھنا جانتے ہیں. جن لوگوں کو قرآن و حدیث کی صحیح معلومات ہے وہ اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں. باقی جو امت کی اکثریت ہے وہ اسی چیز میں لگی ہوئی ہے کہ ہمارا استاد، ہمارا پیر، ہمارا شیخ اور ہمارے اکابر یہ لکھ گئے، ہمارے اکابرین کا یہ عقیدہ ہے، ہمارے اکابرین کا یہ عمل رہا ہے. وہ ہر آدمی اس چیز کو ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے، جب ہر آدمی، ہر عالم، بڑے سے بڑا عالم اس بات کو ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ میں حق پر ہوں، تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے نا، یہ حق پر ہے کون؟ اصل چیز یہ ہے، اصل سوال یہ ہے، اس چیز کا کوئی معیار متعین ہونا چاہیے، اس چیز کا کوئی اصول متعین ہونا چاہیے کہ حق پر کون ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو کچھ سمجھایا، جس پر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل رہا، وہ چیز آخر ہے کیا؟ کس چیز پر ان کا عمل تھا؟ کس چیز پر ان کا ایمان تھا؟ کس چیز پر ان کا عقیدہ تھا؟ وہ کیا چیز تھی جس کے مطابق ان کا عقیدہ تھا؟ اس کی بنیاد پر پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی مومن یہی لوگ ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان کے قلوب کا امتحان لیا. اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المهتدون. اتنی ساری جو خوشخبریاں، اتنے سارے جو القابات اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا فرمائے، وہ کس بنیاد پر تھے؟ ان کا عقیدہ اور ایمان کس چیز پر تھا؟ حضور اکرم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں اس سے بھی زیادہ فرقے ہوں گے، اور حق پر ایک ہی فرقہ ہوگا. حق پر جو جماعت ہوگی، جو فرقہ ہوگا، جو لوگ ہوں گے، وہ حق پر ایک جماعت ہوگی. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہو، جتنے بھی لوگ ہوں، وہ سارے ناحق ہوں گے. اس پر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ ہوگا جو حق پر ہوگا؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو حق پر ہوں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس کا کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں عطا فرمایا. آپ علیہ السلام نے مختصر الفاظ میں فیصلہ فرما دیا کہ وہ جماعت وہ ہوگی، وہ لوگ وہ ہوں گے، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر ہوں گے. اب ہمیں اپنے اپنے ایمان کی جانچ کرنی ہے، اپنے اپنے اعمال کی جانچ کرنی ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارے اعمال، ہمارے افعال کس چیز پر ہیں. آخر ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ تھا. ہمارے اعمال وہی ہیں جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تھے. دوسری چیز یہ ہے، اللہ رب العزت نے جو قرآن مقدس
नाजिल फरमाया अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कुरान मुक़द्दस की तालीम दी तो उसी तालीम के नतीजे में फिर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को ये अलक़ाबात अता हुए। कुरान मुक़द्दस इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के वास्ते नाजिल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस को आखिर तक यानी क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत और रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाया, ताकि क़यामत तक के लोग इसी किताब के जरिए हिदायत का रास्ता ढूंढते रहें। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, और ये कुरान वो किताब है, इसमें वो रास्ता है जो तमाम रास्तों में सबसे सीधा रास्ता है। यानी कुरान मुक़द्दस हिदायत के सिलसिले में सबसे सीधी और आसान किताब है। अगर इस किताब को छोड़ दिया जाए, इस किताब के अलावा कोई दूसरी किताब अगर हाथ में ली जाए, अपने शेख की किताब, अपने उस्ताद की किताब, अगर उस किताब पर हमारा अकीदा और ईमान हो, उस किताब को हम कुरान मुक़द्दस के मद्दे मुक़ाबिल लाएंगे तो याद रखना हिदायत नहीं मिल सकती। हिदायत की किताब सिर्फ कुरान है। दूसरी किसी की लिखी हुई कोई भी किताब हो, अगर वो कुरान मुक़द्दस के मद्दे मुक़ाबिल है तो उस किताब की कोई भी हैसियत, कोई भी हकीकत नहीं। चाहे वो हमारा उस्ताद हो, हमारा शेख हो, कोई भी हो, अगर वो कुरान मुक़द्दस के मद्दे मुक़ाबिल है तो उस किताब की कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि ईमान की किताब, अकीदे की किताब, हिदायत की किताब सिर्फ कुरान मुक़द्दस है। अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इस किताब की इत्तिबा करने का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इत्तबि मा ऊहिय इलैका मिर रब्बिक, ए मेरे पाक पैगम्बर इत्तिबा कीजिए, इत्तिबा कीजिए मा ऊहिय इलैका मिर रब्बिक, जो कुछ आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल किया जा रहा है। आम उम्मतियों के लिए भी इसी चीज का हुक्म है, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, इत्तिबा करो उसका जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया गया है। मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे ऊपर नाजिल किया गया है उसकी इत्तिबा करो। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो नाजिल होने वाली किताब है वो कुरान मुक़द्दस है। कुरान मुक़द्दस में जो कुछ मौजूद है उसको अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत तक पहुंचा दिया। और कुरान मुक़द्दस के अंदर इसी कुरान मुक़द्दस के मुताल्लिक बहुत सारी आयत मौजूद हैं। या अय्युहन्नासु मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफ़क्करून। और एक मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूं फरमाया व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह वला तत्तबिउस सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली। यानी खुलासा ये निकला, अगर कुरान मुक़द्दस को छोड़कर और किसी तरफ हम अगर आएंगे तो फिर हिदायत हासिल नहीं हो सकती। फिर यानी हक और बातिल का मयार मुकर्रर नहीं हो सकता। कुरान मुक़द्दस ये हक और बातिल को अलग करने वाली किताब है। इसीलिए इस कुरान मुक़द्दस का एक नाम है अल फुरक़ान। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये कुरान मुक़द्दस हिदायत की किताब है, यानी हक और बातिल को अलग अलग कर देने वाली किताब है। इसी किताब के जरिए हमें इस चीज का इल्म होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, जन्नत का रास्ता कौन सा है, जहन्नम का रास्ता कौन सा है। लेकिन आज अफसोस की बात यह है पूरी उम्मत इसी चीज में उलझी हुई है कि मैं हक पर हूं वो गलत है, मैं सही हूं वो गलत है। हर आदमी एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाने में मुब्तला है। हर आदमी ये समझ रहा है सिर्फ मैं मोमिन हूं, बाकी कोई मोमिन नहीं है। ये उसी चीज का नतीजा है कि आदमी कुरान मुक़द्दस की तालीमात से दूर हो चुका है। और कुरान मुक़द्दस से दूर होने की वजह से आज इर्तिदाद का भी दौर शुरू हो चुका है। लोग मुर्तद हो रहे हैं, यानी अब लोगों को इस चीज का इल्म नहीं रहा कि हम जो मुसलमान हैं इस्लाम है क्या। बस उनको इस चीज का इल्म है हम मुसलमान हैं। इस्लाम किस चीज का नाम है?
ایمان किस चीज का नाम है, ये इस चीज का इल्म अब नहीं रहा, खास तौर से उन लोगों को जो लोग अपने आप को तालीम याफ्ता समझते हैं, लेकिन उनकी तालीम जो है वो कुरान मुकद्दस से हटकर है, यानी कुरान मुकद्दस के अलावा हर चीज का इल्म उनके पास मौजूद है, इस्लाम का कुरान का उनके पास इल्म नहीं है। यही वजह है उनकी इर्तिदाद की तरफ आने की। अगर यही हाल उम्मत का रहा, कुरान मुकद्दस से दूर होते रहे, आने वाले जो छोटी उम्र के लोग हैं, आगे जाकर के उनका हाल ये होगा, उनको यही नहीं पता होगा हम जो मुसलमान हैं किस वजह से हैं, इस्लाम के अंदर और दूसरे मजहबों के अंदर फर्क जो है वो किस चीज का फर्क है, इस चीज का भी इल्म नहीं रहेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, अपने आप को कुरान मुकद्दस की तरफ लाइए, अपनी औलाद को कुरान की तालीम की तरफ लगाइए। अगर इस चीज का हमें एहसास नहीं रहा, अगर हमने लापरवाही रखी, तो फिर आने वाला जो वक्त है फिर आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे ऊपर जो कुछ ये हालात आ रहे हैं ये इससे भी ज्यादा आ सकते हैं। इसलिए कुरान मुकद्दस की तरफ आओ, कुरान को सीखो और उसको सिखाओ। इसकी तालीम हासिल होनी चाहिए हर मुसलमान को। इस चीज का इल्म, इतना तो इल्म हो कि हम जो मुसलमान हैं वो क्यों हैं, यानी इस्लाम के अंदर जो दाखिल हुए हैं वो किस वजह से, हमारे बाप दादा जो मुसलमान थे उसकी वजह क्या है, और ये कुरान मुकद्दस नाजिल क्यों हुआ, कुरान मुकद्दस किस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी मोटी किताब नाजिल फरमाई। इस कायनात के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो चीजें हम अंजाम दे रहे हैं, जो काम हमारे हाथों से हो रहे हैं, कोई काम कोई चीज बेमकसद बेबुनियाद नहीं है। तो इतनी मोटी सी बात ये भी समझ लीजिए, कुरान मुकद्दस जो नाजिल हुआ वो किसी मकसद के लिए ही नाजिल हुआ है, बगैर मकसद के कुरान मुकद्दस भी नाजिल नहीं हुआ। वो मकसद क्या है, वो इस चीज पर हमें सिर्फ गौर करना है, मकसद क्या है। अगर ये मकसद हमारे समझ आ गया कि हिदायत की किताब है, हिदायत हासिल करने के लिए कुरान मुकद्दस को नाजिल फरमाया गया, तो फिर सारे मामले आसान हो जाएंगे। आज कुरान मुकद्दस के मुतालिक आज मुसलमानों का सिर्फ इतना सा जहन रह चुका है कि ये असमत वाली किताब है, हम इसको नहीं समझ सकते, ये तो बहुत असमत वाली किताब है, इसने इसको ऊपर रख दो, यानी इसको रख दी गई, खोलने के लिए भी उसको भी कोई राजी नहीं है कि हमारे समझ नहीं आएगी। ये हिदायत की किताब है, बहुत आसान किताब है। कुरान मुकद्दस में बार बार ये आयत मौजूद है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को आसान बना दिया, आसान अंदाज में इसको नाजिल फरमाया, इसके अल्फाज आसान है, इसका समझना भी आसान है, लिज़्ज़िक्र नसीहत हासिल करने के वास्ते। अगर ये समझ लें कि ये किताब कोई मुश्किल किताब है, तो फिर ये इल्जाम अल्लाह रब्बुल इज्जत पर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत के सिलसिले में जो किताब नाजिल फरमाई वो इतनी मुश्किल किताब थी कि हमारे समझ में नहीं आई। याद रखना, कुरान मुकद्दस को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हिदायत के लिए नाजिल फरमाया, आसान अंदाज में नाजिल फरमाया, तो याद रखना क़यामत के दिन हमारे पास कोई भी इसका जवाब नहीं हो सकता कि हम कुरान से दूर क्यों हुए। वइन्नहु लज़िक्रुन लका वलिक़ौमिका वसौफ़ तुसअलून, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मुकद्दस के बारे में आपसे भी सवाल होगा और आपकी कौम से भी सवाल होगा, यानी हर एक से इसका सवाल होगा। वसौफ़ तुसअलून, और तुम सब से इसका सवाल होगा। अब हम अगर ये समझ लें हम तो आम आदमी हैं, हम तो लिखना पढ़ना नहीं जानते, हमें तो इतना इल्म नहीं है, तो हमारे से इसका सवाल नहीं होगा। याद रखना ये ख्याल गलत है। ये आयत ये बता रही है हर एक से इसका सवाल होगा, आम आदमी हो उससे भी, आलिम हो उससे भी। इसलिए इस शैतानी धोखे में न आइए कि ये किताब कोई मुश्किल किताब है, हम नहीं समझ सकते। हर आदमी इसको समझ सकता है, सिर्फ वक्त की जरूरत है। थोड़ा सा वक्त कुरान मुकद्दस की तरफ लगाइए तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।